that Guruji gives us, we can also become our own healers. Guruji has also written a lot of books. To mention few, I will mention Seven Secrets of Yoga, Secrets of Healthy Living, etc. So I will not take much of your time and I hand it over to Guruji. और आई एम श्योर आज हम गुरुजी से बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो कि गुरुजी हमें ज़रूर बताएंगे। गुरुजी प्लीज। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवन्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार आप सबको। और first of all, I'd like to congratulate the organizing team for organizing such important and useful sessions for the benefit of everyone in bulk, and is including students and faculties and all. Yes, there are many viewers from outside because it is being broadcasted live in social media also. Today I'll be talking about fundamentals of nature cure, which will not only help you become your own doctor. If there are any health complications, you can certainly help yourself out to overcome these health problems and complications. If not, you'll be able to prevent them and stay a healthy and happy and blissful life. To move in this direction, we have to understand the subject better. So when we talk about nature cure, there are three important points we need to understand. One, we need to understand what is health. Two, we need to understand what is disease. And nature cure, or we call it naturopathy, a system which advocate the treatment of all health complications or disease with no medicine, no injection, no surgery, but simply helping the nature itself. We just bring healthy state and optimize the state of being. That is actually naturopathy. So health kya hai? Health is not only the mere absence of disease, but it is holistic state of well-being, where our physical, mental, emotional, and socio-economic well-being in bulk. This is actually the definition given by WHO in latest time. Obviously, this definition was not the first definition given by WHO, but with time, with greater understanding and study, WHO has acknowledged that physical, mental, emotional,
socio-economic and spiritual wellness is important to have a holistic health. So health means चाहे वो फिजिकल बॉडी में हो, चाहे मेंटल में हो, इमोशनल लेवल में हो या स्पिरिचुअल लेवल में, कहीं भी किसी भी तरह का अगर डिसकंफर्ट, डिसईज या प्रॉब्लम्स ना हो तो उस स्टेट को कहा गया। तो डिजीज क्या है? Obviously, when you are not in ease, that is disease. Absence of ease or comfort is disease. And now, to achieve that absence of disease or state of holistic health, we have a simple principle that we apply in nature cures. In nature cure, it believes that our body is made of 5 different elements. We call them Pancha Kosha, Pancha Tattva, Pancha Mahabhuta. These 5 elements, like in Hindi we call it Mitti, Pani, Dhoop, Hawa or Akash. Mitti means earth element. Pani, obviously Jal Tattva. Dhoop, Agni Tattva. Hawa, air element. And Akash, space element. These are the 5 elements जिसके कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर बना हुआ है, और एट द एंड इन्हीं 5 तत्वों में यह विलीन हो जाता है। फॉर्म चेंज होगा, डिफरेंट फॉर्म में जाएगा, बट अल्टीमेटली इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। और अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो तो इन 5 तत्वों के बीच में किसी न किसी रूप में असंतुलन पैदा हो रखा होता है। दैट लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, डिस्कम्फर्ट, डिसीज। In nature cure, we use therapy based on these 5 elements. Like earth element को use करने वाला जो therapy है, we call it मिट्टी चिकित्सा, mud therapy. जल तत्वों को use करने वाला जो therapy है, we call it hydrotherapy, जल चिकित्सा. And इसी तरह से फायर एलिमेंट को यूज करने वाला जो थेरापी है, इसको कहते हैं हम लोग सूर्य किरण चिकित्सा, क्रोमोथेरापी. और इसी तरह एयर एलिमेंट को यूज करने वाला थेरापी एक्चुअली इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज. इन योगिक टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड प्राणायाम. एंड अदर वन इज स्पेस एलिमेंट को यूज किया जाता है. I hope I am audible. I don't know. Yes, Guruji, you are. So, Guruji, we could. Am I audible? Yes, Guruji. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Guruji, that was a could message. you please repeat the last element, space element, and the therapy, because you Okay. were not audible. Yeah. So the last one is space element. We call it these are the 5 different elements which we use as a therapeutic tool. और इन 5 तत्वों को संतुलित करते हुए इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के माध्यम से हम सभी तरह की बीमारियों को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं. If these diseases are not there in your body, you can simply prevent all these problems. So it is effective in that sense. तो आप हर तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह प्रिवेंट कर सकते हैं. और इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका फंडामेंटल आधार क्या है, इन चीजों को भी आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है,
हमारे शरीर के अंदर बीमारी का जो कारण है, इसको अगर हम ढूंढ लेते हैं तो फिर इसका समाधान बहुत आसान हो जाता है। जो पॉपुलर थेरापी के रूप में एलोपैथिक मेडिसिन इस समय पूरे दुनिया में प्रोपोगेटेड है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉबी है, काम करता है। और इसको हम थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोई भी बीमारी होते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं अलग अलग ढंग से, अलग अलग इसके जो नेचर के आधार पर। एक क्लासिफिकेशन है कि क्रॉनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। डिजीज दो तरह के, इसके मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार ये जब समझ में आ जाता है, क्योंकि प्राकृतिक ढंग से अगर चिकित्सा करनी है या एक तरह से खुद का डॉक्टर बनना है तो हमें इन बेसिक चीजों को समझना होता है। तो डिजीज मैंने कहा दो तरह के हैं, एक एक्यूट एंड क्रॉनिक। क्रॉनिक डिजीज एक्चुअली इमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, बहुत लंबे समय के बाद फॉर्म होता है। इसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत पहले से बना हुआ होता है और इसमें सबसे पहले अगर हम स्टडी करते हैं तो कोई भी सामान्य जब शरीर के अंदर प्रॉब्लम सेट इन करता है, एंटर करता है, तो बॉडी रिएक्ट करती है। उस रिएक्शन के कारण से हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज्म है जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, when that start working, it will bring number of reactions that includes loose motion, sometime vomiting, sometime fever, या कई बार टेस्ट चेंज हो जाता है, खाने का दिल नहीं करता है। And when these things happen, it will help our body to detoxify. Our body will help remove the toxins out. But most of the time, people start taking medicine to suppress these symptoms. When we take medicine to suppress the effort made by body to detoxify itself, the toxins which were the root cause of that acute reactions start settling down in the body. And when that happens, over the period of time, in whatever area or the organs or the part of the body these toxins are accumulated, the toxins will become the barrier of circulation, and that will stop supply of nutrition and oxygen to that area. And when that happens, gradually cells or the tissues and the organs and the system start becoming weaker and weaker and weaker, and over the period of time, permanent damage happened to that particular area. And when that permanent damage is happened, the vital organs or the important organs which were supposed to work continuously 24/7 stop responding to the call according to the situations made by our brain and nervous system. And that condition is actually acute condition, chronic conditions. तो मैंने कहा acute सामान्य रूप में बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन, फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन मैटर या कोई टॉक्सिक एक्यूमुलेशन होता है तो उसको शरीर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, नेचुरल कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए जो एफर्ट करती है, जिसके अंतर्गत लूज मोशन से लेकर के नाक बहना या वोमिटिंग होना या फीवर आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसको सप्रेस करने से बनने वाला जो दूसरा कंडीशन होता है वह एक्यूट कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में चाहे डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या माइग्रेन हो या अस्थमा हो, आर्थराइटिस हो, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। जब ऐसे प्रॉब्लम एक बार हो जाए तो इन प्रॉब्लम का कोई परमानेंट एलोपैथिक मेडिसिन में तो इलाज नहीं। अगर इनको हम पूरी तरह से क्योर करना चाहते हैं तो वी हैव टू रिटर्न टू नेचर, फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, स्टार्ट इंप्रूविंग आवर डाइट हैबिट, स्टार्ट डूइंग physical activities and exercise to support better circulation and detoxification. जब ऐसा होता है तो शरीर over the period of time, शरीर के अंदर जो
फॉरेन बैक्टीरिया से लेकर के वायरस या जो सॉलिड वेस्टेज एक्यूमुलेटेड थे, ये सारे वेस्टेज शरीर से बाहर निकलने लगते हैं. Once these wastage are removed from the body, body will be able to restart its natural function and restore the natural state of health. We call it holistic health. ये इस तरह से काम करता है. तो आपको कभी भी लूज मोशन हो, वोमिटिंग हो या फीवर हो या नाक बहता हो, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती. इसमें आपको करना चाहिए कि आपकी जो बॉडी का नेचुरल एफर्ट हो रखा है, जो भी फॉरेन मैटर या टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया शरीर के अंदर एंटर करे हुए, उनको निकालने का जो बॉडी का नेचुरल एफर्ट है, उसको सपोर्ट करना है. इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हो सके तो गुनगुना पानी पीना है, और शरीर को खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देनी है. रेस्ट देने के लिए आप वाटर फास्टिंग कर सकते हैं. अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा है और आप मेंटली प्रिपेयर न हो, तो भी जूस फास्टिंग कर सकते हैं, फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं, सिंगल फ्रूट फास्टिंग कर सकते हैं. इस तरह से इसको पचाने के लिए शरीर के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और जो एनर्जी प्रिजर्व होता है, यूजिंग दैट एनर्जी बॉडी विल बी एबल टू डू इट्स हीलिंग कोर्स, fighting course, so that it will overcome the symptoms of the problems that was there. Permanent, in a permanent way it will be able to overcome that. तो ये हमें एक चीज समझना है. इस तरह से हम लोग बॉडी को जब सपोर्ट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे किसी भी तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम क्यों ना हो, जैसे मैंने कहा डायबिटीज या आर्थराइटिस या अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या माइग्रेन या इंसोम्निया, इस तरह की प्रॉब्लम भी पूरी तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योर हो सकते हैं. मेडिसिन में डिपेंड रहेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है. ये नेचर क्योर ही इस तरह के परिणाम को दे सकता है. और आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इसका इतना ज्यादा प्रोपोगेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कमर्शियल प्रोस्पेक्ट नहीं है. जहाँ कमर्शियल प्रोस्पेक्ट होता है उसी का एडवर्टीजमेंट होता है, उसी के ऊपर बहुत लोग निर्भर होते हैं, तो प्रोपोगेट करते हैं. अब इसमें तो खुद ही अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट करना पड़ता है, खान पान को कंट्रोल करना पड़ता है. ये व्यक्ति स्वयं अगर समझदार बने, प्राकृतिक चिकित्सक के सामने बैठ करके इन सारी चीजों को समझ करके, प्राकृतिक चिकित्सक एक तरह से टीचर होते हैं, और इनको पूरी तरह से समझ करके अगर इंसान लाइफ स्टाइल में इन सारे चीजों को इन्वॉल्व करता है, फॉलो करता है, तो फिर वह स्वयं का डॉक्टर बन जाता है. ये इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा स्वयं को डॉक्टर बनाने का थेरापी. एक्सीडेंटल इंजरी के कारण से जो चोट लगे हुए हैं, उस चोट के टाइम में मोस्टली अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो तो उसका इंटरनल सफाई करके बॉडी का नेचुरल स्टेट रिस्टोर करने के लिए कुछ मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है. अदरवाइज किसी भी तरह का, चाहे वो क्रॉनिक हो या एक्यूट प्रॉब्लम हो, नेचर अपने आप ही हील करती है. बस हमें उसका हीलिंग एनवायरनमेंट देना होता है. This is what is a very important fundamental principle of nature cure. और नेचुरोपैथी और इसका जो डिजीज के रूट कॉज को भी हमें समझने की जरूरत पड़ती है. अब रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में अगर जाएंगे तो कुछ बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, कुछ बीमारी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का नॉर्मली मेंटेनेंस किया जाता है एलोपैथिक मेडिसिन में, क्योर नहीं होता. और जो कम्युनिकेबल डिजीज है, उन डिजीज में चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबायोटिक से लेकर के कई तरह के एफर्ट किए जाते हैं, या मेडिकल या इंजेक्शन, मेडिसिन या इंजेक्शन के रूप में बॉडी के अंदर चीजों को डाला जाता है, जो जाकर के उन बैक्टीरिया वायरस को डैमेज या डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे शरीर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकवर कर पाए. और जैसे कि मैंने कहा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसको हम दूसरे क्लासिफिकेशन के साथ लिंक करेंगे तो क्रॉनिक डिजीज कहते हैं. क्रॉनिक डिजीज का कोई परमानेंट क्योर तो एलोपैथिक मेडिसिन में होता नहीं है, मेंटेनेंस होते हैं, तो उसको आप हटा दीजिए. और दूसरा जो क्रॉनिक डिजीज है,
ये एक्यूट डिजीज है, जो बैक्टीरिया है, वायरस ड्रिवन डिजीज है, इनके ऊपर एक पॉइजनस एंटीबायोटिक वगैरह दिया जाता है जो शरीर के अंदर सारे बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जब डिस्ट्रॉय करे, एक बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, कोर्स एक बार 3 दिन 5 दिन 7 दिन का कोर्स चलने के बाद, उसके बाद जब फिर उसको बंद किया जाता है, उसके बाद शरीर कुछ समय में रिकवर करती है। जब तक मेडिसिन चल रहा होता है, इंसान बहुत कमजोरी फील करता है, उसका पेट साफ नहीं होता, शरीर का इंटरनल सिस्टम एक तरह से ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका होता है। लेकिन उस बीच में जितने भी बैक्टीरियाज है, फॉरेन या जो बॉडी फ्रेंडली बैक्टीरिया, सारे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। यही कारण है उस समय पेट भी साफ नहीं होता है, यही कारण है उस समय कमजोरी आती है बहुत ज्यादा, यही कारण है उस समय बहुत चक्कर भी आते हैं कई बार लोगों को। तो ऐसा ना हो, और उसको थोड़ा सा कम करने के लिए डॉक्टर मल्टीविटामिन से लेकर के कई सारे चीजें देते हैं, और इसको खाने से पहले कहते हैं कि प्रॉपर खाना खाने के बाद ही खा लेना है, जिससे थोड़ा सा एनर्जी लेवल बना रहे और ऐसे चक्कर वक्कर आकर के गिर न जाए। तो ये अप्लाई किया जाता है एलोपैथिक मेडिसिन। लेकिन नेचुरोपैथी सिस्टम और नेचर केयर सिस्टम है, इसमें फंडामेंटल बिलीव है कि अगर शरीर के अंदर कूड़ा ना होता, गंदगी ना होता, ये बैक्टीरिया या वायरस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड ना होता, तो ये पनप ही नहीं पाते। तो शरीर के अंदर उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बना हुआ है पहले से, तभी वो सरवाइव कर रहे हैं। अभी के समय में भी कोविड का जो प्रॉब्लम है, आपने ऑब्जर्व करे होंगे कि जितने भी लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है, जो पहले से बीमार नहीं है, इतनी ज्यादा कमजोरी नहीं है, ऐसे लोगों को अगर ये कोविड लग भी गया हो तो भी इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और पीपल आर बीइंग एबल टू ओवरकम इट। यही कारण है कि 90% से ज्यादा लोगों को तो लगने के बाद सिम्टम भी नहीं दिख रहे हैं, और कुछ लोगों को जो दिख रहे हैं उनमें जिनका इम्यून सिस्टम पहले से कमजोर है, जो पहले से बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं, और जो सारे मेडिसिन जो क्रॉनिक नेचर के प्रॉब्लम में, चाहे बीपी हो या अस्थमा हो या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन प्रॉब्लम में जो मेंटेनेंस के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं, ये मेडिसिन शरीर को पहले से खोखला बना रखे होते हैं, अंदर से शरीर बहुत कमजोर हालत में होती है। तो ऐसे लोग ही इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इससे ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना कितना जरूरी है। तो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग हो, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन न हो, तो ऐसे इंसान के शरीर के अंदर कोई बीमारी टिक नहीं सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया ड्रिवन हो या वायरस ड्रिवन हो। तो इसके लिए नेचर क्योर में हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के ऊपर बहुत ज्यादा इम्फेसिस देते हैं, फोकस के साथ। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो करते हैं, और इन टेक्निक के माध्यम से हम शरीर को पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री करते हैं। शरीर के इंटरनल सिस्टम जब टॉक्सिन फ्री हो जाए, तो वहां सर्कुलेशन सही तरह से हो पाएगा। सर्कुलेशन सही तरह से हुआ तो न्यूट्रिशन का सप्लाई अच्छी तरह से होगा। सेलुलर लेवल में जो वेस्टेज बनते हैं, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सेलुलर वेस्टेज कैसे बनता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना पचने के बाद उसका रस रक्त में मिलता है, बचा हुआ पार्ट डाइजेस्टिव वेस्टेज के रूप में फूड पाइप से मल के रूप में मलाशय होते हुए एनएस से बाहर निकलता है, और जो न्यूट्रिशन पचने के बाद रक्त में मिला है, रक्त से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होते हैं, these cells are consumer in a sense, एंड कंज्यूमर है। और ये कैसे कंज्यूम करते हैं उस पोषण को? ऑक्सीजन के हेल्प से ये कोशिकाएं उस पोषण को जलाते हैं। उसको जला करके कुछ ऊर्जा पैदा होता है, उस ऊर्जा को प्रयोग करते हुए वो सेल्स, जो कोशिकाएं काम करते हैं। जब किसी चीज को जलाओ तो वहां दो चीजें पैदा होता है, एक तो धुआं, इनफैक्ट तीन चीजें, एक एनर्जी, दूसरा धुआं, तीसरा राख। ये तीनों चीजें पैदा होते हैं। एनर्जी तो सेल्स ने अपने काम के लिए कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, और जो धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहते हैं, दैट इज धुआं एक्चुअली बीइंग क्रिएटेड एट द लेवल ऑफ द सेल्स। और उस प्रोसेस में मेटाबॉलिक वेस्टेज के रूप में, राख के रूप में मेटाबॉलिक वेस्टेज, सेलुलर वेस्टेज बनते हैं। इन चीजों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, और उसको बाहर निकालने का नेचुरल प्रोसेस
अगर यह निकालने का काम सही तरह से न हो पाए तो फिर शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन बढ़ जाता है। जब टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन बढ़ता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल्स के स्तर पर न्यूट्रिशन सप्लाई का रास्ता धीरे धीरे बंद होने का संभावना होता है। कभी कभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंद भी हो जाता है, पूरी तरह से बंद भी हो जाता है। जब ऐसा बंद हो जाए तो सेल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का सप्लाई के लिए एक तरह से रास्ता नहीं मिलता है, तो सेल्स डिजेनरेटेड होते हैं और फिर धीरे धीरे खास करके सबसे ज्यादा काम करने वाले ऑर्गन से रिलेटेड सेल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और अगर यहाँ सफाई प्रॉपर नहीं हुआ तो वो फिर बंद हो जाता है रास्ता, जिससे पोषण का सप्लाई बंद हो गया, वेस्टेज निकलना रुक गया, तो धीरे धीरे फिर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। आप बाहर की चीजों को, लॉ ऑफ नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। एक बहुत बढ़िया घर बना लें और उसमें कोई इंसान न रहे, उसको बंद करके रख लें कुछ साल के लिए, तो बहुत जल्दी खंडहर बन जाता है। इसके कंपैरेटिवली एक बहुत कम सेल मटेरियल से बना हुआ घर भी क्यों ना हो, उसको अगर हम प्रयोग करते रहें तो ये सालों साल चल जाता है, क्योंकि वो एक्टिव रहने से अपने मेंटेनेंस हो जाता है। पानी को अगर देखेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि पानी अगर इकट्ठा होता है तो गंदा हो जाता है जल्दी। लंबे समय तक पानी इकट्ठा करके रख दें तो पानी बदबू करने लगता है, उसके अंदर धूल मिट्टी से लेकर के कई सारे चीजें इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। लेकिन अगर पानी बहता हो, बेशक गंदा पानी भी क्यों ना हो, अगर उसको बहा दे और वो बहता रहे तो अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाई कर ले। बहते हुए पानी अपने आप को निर्मल और कंचन बना देती है। और इसी तरह से और नेक्स्ट आयरन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। अगर आयरन हम यूज करते रहते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता। अगर उसको इकट्ठा करके ऐसे ही रख दें तो बहुत जल्दी जंग लग जाता है, एक समय आएगा वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसको हमें प्रिवेंट करना है। यही चीज हमारे शरीर के अंदर भी होता है और इसको प्रिवेंट करना है। शरीर के अंदर अगर हम सिस्टम को प्रॉपरली एक्टिव नहीं रखते हैं तो सेलुलर वेस्टेज का एक्युमुलेशन के कारण से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शरीर अपने आप को सेल्फ हील, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन करने का हालत में नहीं रहती है। और हम प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर के इस नेचुरल सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालने के लिए काम करते हैं, और इससे फिर शरीर अपने आप को सेल्फ हील करता हुआ होलिस्टिक हेल्थ को हासिल कर पाती है। तो इन सामान्य बातों को हमें ध्यान में रखना है। मैंने कहा रूट कॉज शरीर के अंदर गंदगी का इकट्ठा होना और गंदगी को निकालना ही इसका परमानेंट इलाज है। मैंने कहा डिजीज दो तरह के होते हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट। एक्यूट डिजीज नॉर्मली आर फ्रेंड to the body. Like fever is a fire created by nature to burn out disease. Loose motion is the call of nature to remove the wastage accumulated in our body. Similarly, vomiting also is effort of the body to remove wastage that is entered in our body through food pipe. This one, running nose are also effort of body to remove the wastage deposited in our nasal passage. तो इस तरह से बॉडी के एफर्ट होते हैं, इनको हम सपोर्ट करेंगे। यही नेचुरल थेरापी का एक प्रिंसिपल के रूप में फॉलो किया जाता है। और इसके साथ जो मैंने थेरापी बताया, 5 थेरापी, उसमें सबसे पहले मैंने कहा था मड थेरापी। मड थेरापी कैसे करते हैं? मड का एक ग्रेविटेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कहीं दर्द है तो मड थेरापी में हम लोग, जैसे ज्यादातर लोग यहाँ स्टूडेंट जुड़े होंगे, उनको आंखों से रिलेटेड, ऑब्वियसली आंखों को ज्यादा यूज किया जाता है स्टडी करते समय। आजकल तो ऐसे भी डिजिटल एक्सपोजर ज्यादा है, कंप्यूटर से लेकर के मोबाइल में ज्यादा काम किया जाता है, तो उसका रेडिएशन से लेकर के जो रेज काम करते हैं, इससे आंखों में प्रेशर ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल रीडिंग ऑफ बुक्स एंड राइटिंग इन अ पेपर। तो इसमें आंखों का थकान या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप आईज को अच्छी तरह से ब्लिंकिंग नहीं करेंगे
तो आंखों के लेवल में काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है, उस ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए आंखों के स्तर पर जो एनर्जी कंजप्शन होता है, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन आंखों के लेवल पर आता है। और उसके बाद आंखों की जो सेल्स एंड टिश्यूज उसको बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस एनर्जी से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके ब्रेन में भेज करके उसको कॉग्निशन डेवलप करने में हेल्प करते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आपने आईज को प्रॉपर ब्लिंकिंग नहीं करा, आंखों को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया, तो फिर एक तो जो सेलुलर वेस्टेज प्रोड्यूस हुआ था वो वहां से सफाई होकर के डिटॉक्स नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो थकान आता है उस थकान को रिकवर करने के लिए अगर रेस्ट नहीं मिला तो सेल्स धीरे धीरे थके हुए कमजोर बने रहते हैं। अगर किसी से बहुत ज्यादा काम करा लो, उसको रेस्ट करने का टाइम ना दो, तो एग्जर्शन के कारण से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पूरी तरह से कोलैप्स भी हो सकता है। आंखों का भी यही हाल होएगा। और जिसके कारण से जब आंखों के सेल्स बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, थके हुए पड़े रहते हैं, तो ऐसे में आंखों के जो लेंस को बांधने के लिए जो आईज के मसल्स होते हैं वो कैपेबल नहीं हो पाते हैं। ओवर द पीरियड उस डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए आंखों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसको सिंपल आईज का एक्सरसाइज आप रोज रूटीन में कर लो, कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप आई बॉल को अप एंड डाउन कर लो, राइट लेफ्ट मूवमेंट कर लो, और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर ब्लिंकिंग करके टाइटली आईज को क्लोज करेंगे, रिलीज करेंगे, टाइटली क्लोज करेंगे, रिलीज करेंगे, और फिर हथेली को अच्छी तरह से रॉबिंग आराम से टहलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इफेक्टिव एक्सरसाइज। इससे आंखों के अंदर सेलुलर वेस्टेज डिपोजिशन होने का टेंडेंसी रिवर्स होगा। और जब मसाज करके आप रिलैक्स करते हुए हाथ को हटाते हैं, तो रेस्ट मिलने के कारण से, नॉरिशमेंट प्रॉपर मिलने के कारण से आईज के सेल्स अपने आप को रेजुविनेट करते हैं। यही काम हम लोग मड थेरापी से करते हैं। उसमें आंखें बंद करके मिट्टी का पट्टी बना करके आंखों के ऊपर लगा देते हैं, और 10 से लेकर के 20 मिनट तक आंखों के ऊपर एक कपड़े का लेयर के हेल्प से लगाया जाता है, जिससे मिट्टी आंखों के अंदर ना जाए, और आंखें बंद करके ऊपर लगा दिया जाता है। और इस तरह से मिट्टी के पट्टी लगाने से आंखों के अंदर जो सेलुलर वेस्टेज एक्यूमुलेट हो रखे थे वो रिमूव हो जाते हैं, और वो ग्रेविटेशन के कारण से वो पुल करके निकाल देता है, और सेल्स को, आंखों के सेल्स को रेजुविनेशन हो जाती है, ठंडक पहुंचती है, और वो कंट्रैक्शन क्रिएट होता है ठंडक से। और जब कंट्रैक्शन होता है तो सेलुलर वेस्टेज वहां से बाहर निकलने वाले निकल जाते हैं, और ग्रेविटेशन के कारण से पुल कर देती है। तो ये फिर वेस्टेज को रिमूव करते हुए आंखों के हेल्थ को रेजुविनेट, रिवाइव करने में इफेक्टिव होता है। यही काम पेट में किया जाता है, यही काम स्पाइन में किया जाता है। जहां प्रॉब्लम है उस जगह पर मिट्टी का इस तरह का पट्टी का प्रयोग होता है। इसी तरह से अगर स्किन में प्रॉब्लम हो तो मुल्तानी मिट्टी बहुत इफेक्टिव है, उसका लेप लगाया जाता है, जिससे एक ग्रेविटेशन के कारण से जो पोर्स बंद हो रखे हैं उसको पुल करते हुए उसके अंदर जो भी गंदगी होगा उसको पुल करते हुए निकाल देगा, और फिर उसके बाद सेल्स को स्टिमुलेट करते हुए एफिशिएंट बना देता है। सेल्स विल बी एबल टू फंक्शन बेटर। और इसी तरह से हाइड्रोथेरापी है। हाइड्रोथेरापी में हम लोग नॉर्मली गर्म और ठंडा पानी का प्रयोग करते हैं। गर्म से नॉर्मली एक्सपांशन इफेक्ट आता है, ठंडे से कंट्रैक्शन इफेक्ट आता है। और अगर आपको जैसे अंदर से सफाई करनी है तो गर्म पानी का इंटरनल प्रयोग करेंगे, या एक्सटर्नल प्रयोग से भी एक्सपांशन इफेक्ट आता है। आपने कई बार नोटिस करे होंगे, सामान्य रूप में हम लोग पारिवारिक लोग हैं, हमें पता चल ही जाता है। आपने नोटिस करे होंगे बहुत सारे लोग सर्दी के समय में हार्ट अटैक के कारण से बेड में सोए सोए मर जाते हैं। इसका पीछे का कारण क्या है? ठंड के कारण से शरीर में सिकुड़न पैदा होती है। जब सिकुड़न पैदा होता है, कंट्रैक्शन होता है, तो ऐसे में सर्कुलेशन का जो पाइप है जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, उन आर्टरीज में भी कंट्रैक्शन आता है। जब कंट्रैक्शन आता है तो उस समय अगर पहले से थोड़ा बहुत ब्लॉकेज होगा तो वह ब्लॉकेज पूरी तरह से पाइप को बंद करा देता है कई बार। जब ऐसा पूरी तरह से बंद हो जाए तो फिर खास करके हार्ट में और ब्रेन में सप्लाई करने वाले पाइप में अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है, फिर ये डैमेज हो जाते हैं। ब्रेन सेल्स अगर काम ना करे, हार्ट अगर काम ना करे, तो फिर डेथ हो ही जाता है। इस तरह का कंट्रैक्शन का प्रभाव होता है। अब हम थेरापेटिक यूज कैसे करते हैं? अगर किसी को, किसी के सर्कुलेशन में दिक्कत है,
तो हम लोग गर्म पानी का प्रयोग कराते हैं, जिससे एक्सपांशन इफेक्ट आएगा, सर्कुलेशन रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी का इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग ज्यादा हो रखा हो तो बर्फ वाले ठंडे पानी का प्रयोग करके कंट्रैक्शन इफेक्ट ले आकर के ब्लीडिंग को रुकवाते हैं। अगर किसी को फ्रेश घाव हो रखा है तो बर्फ से सिकाई करके उसको कंट्रैक्शन करते हुए बंद करा करके बॉडी को फिर हीलिंग के लिए टाइम दिया जाता है। और ब्लॉकेज हो तो गर्म पानी का प्रयोग कराया जाता है। ब्लॉकेज के कारण से दर्द हो तो गर्म सिकाई या भाप स्नान से लेकर के गर्म पानी का प्रयोग, किसी को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रखा है, पेट साफ नहीं हो रखा है, स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन होता है। मैंने पाया बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मैं जाता रहता हूँ और मैंने देखा है लोगों को, कहते हैं एक्सपीरियंस शेयर करते समय कहते हैं कि एक एक हफ्ते से पेट साफ नहीं हो रखा है कई लोगों का। इस तरह का एक्सपीरियंस भी मैंने सुना है। क्यों? क्योंकि खान पान ऐसे बहुत बाहर के फास्ट फूड टाइप के खाना खा लेते हैं और खाने बैठने सोने उठने जगने का कोई रूटीन फॉलो नहीं हो रहा होता है, तो बॉडी क्लॉक बिल्कुल पजल्ड हो जाता है, किस समय निकालने के लिए एफर्ट करना है पता ही नहीं चलता। तो ऐसे फिर शरीर का जो डिटॉक्स सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। ऐसे में फिर लोगों को कई सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन फॉर्म होने का संभावना है। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको एवरीडे सुबह उठ करके 2 गिलास कम से कम गर्म पानी पी करके कुछ योगिक आसन प्रैक्टिस करना होता है। जैसे आप ऐसे पानी पिए, खड़े होकर के शरीर को स्ट्रेच करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, फिर ये साइड मूवमेंट करेंगे। पानी पिया हुआ वो पानी फटाफट फूड पाइप में नीचे जाएगा, फिर ट्विस्टिंग कर लीजिए, अच्छी तरह से ट्विस्ट करेंगे राइट एंड लेफ्ट हाथ को मूव करते हुए। इसे जो पानी पिया था वो पानी फटाफट नीचे चला जाएगा और फूड पाइप को पूरी तरह से साफ करने में हेल्प मिलेगा। गर्म पानी अगर पिया है तो उससे फिर एक्सपांशन इफेक्ट बेटर आता है, तो फूड पाइप को थोड़ा सा फैलाव जैसा प्रभाव देगा और फूड पाइप के अंदर जो भी चीजें हैं वो आसानी से मूव करेंगे डाउनवर्ड, तो पेट साफ हो जाता है। ऐसे तो खाने में थोड़ा रफेज इंटेक थोड़ा बढ़ानी चाहिए और नॉन रफेज टाइप के प्रोसेस फूड को कंट्रोल करना होता है परमानेंट और इफेक्टिव सॉल्यूशन के लिए। लेकिन ये इमीडिएट रिजल्ट देने वाला बहुत इफेक्टिव थेरापी है ये। हम लोग योगिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको शंख प्रसारण सीरीज के प्रैक्टिस के रूप में करते हैं और चमत्कार होता है। पानी बार बार पी करके इस सीरीज को किया जाता है, लगभग 2 से 3 घंटे तक लगा करके इस पूरे सीरीज को किया जाता है। तो लास्ट में पेट साफ इतना अच्छी तरह से होता है कि जैसा साफ पानी पिया था मोशन में ऐसा ही साफ पानी निकलने लग जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को शंख प्रचालन प्रोसेस कहा जाता है और इसको नॉर्मली साल में 2 बार, जब सीजन चेंज होने का टाइम होता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आने का टाइम होता है, उस समय किया जाता है। और इसका बहुत चमत्कारिक प्रभाव है कि इम्यून सिस्टम बहुत शार्प और स्ट्रांग रहता है ऐसे इंटरनल कंप्लीट क्लीनिंग करने से। ऐसे लोगों को जो वायरल इन्फेक्शन से लेकर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होने का संभावना बहुत कम होता है, क्योंकि उसका इंटरनल सिस्टम अंदर से क्लीन होकर के सर्कुलेशन से लेकर के इंटरनल कम्युनिकेशन साफ होने के कारण से चाहे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर करे, शरीर इमीडिएटली उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल होती है। ऐसे चमत्कारिक कैपेसिटी हमारे शरीर के अंदर इनबिल्ट है। और इसके साथ साथ में तीसरा थेरापी जैसे सूर्य किरण चिकित्सा, अगर हम लोग धूप में रोज कम से कम 10-15 मिनट बैठ जाएं, खास करके अगर सुबह के टाइम में, तो हमें जो सूर्य से जो प्रकाश मिलती है इसके माध्यम से मल्टीपल विटामिन मिलते हैं, जो शरीर के इंटरनल सिस्टम को एक तरह से रेजुविनेट और वाइटलाइज करने के लिए बहुत प्रभावकारी, और शरीर का जो इंटरनल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रेशनरी सिस्टम को इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। और इसी तरह से एयर थेरापी में हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से जैसे श्वास को रेगुलेट करते हुए किया जाता है, श्वास को रेगुलेट करके हम अपने शरीर के अंदर संचार होने वाले जो 5 प्राण और 5 उपप्राण करके 10 प्राण काम करते हैं। और 5 प्राण में क्या क्या है? मुख्य जो प्राण है उसमें एक है शरीर के अंदर जीवन शक्ति का संचार करने का, जो प्राणिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला
सिस्टम। दूसरा अपान, शरीर के अंदर खाना पचने के बाद, रस बनने के बाद, शरीर में एब्जॉर्प्शन होने के बाद बचे हुए चीजों को निकाल फेंकने का एक एनर्जी मैकेनिज्म, जिसको अपान एनर्जी मैकेनिज्म कहते हैं। इसी तरह से समान है, जो एनर्जी एब्जर्व करके रखा गया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और जो एक्सेस है उसको फिर एक्यूमुलेशन, फ्यूचर यूज के लिए सेविंग करके रखने का सिस्टम, जिसको हम लोग समान वायु का काम कहते हैं, जो नेवल सेंटर रीजन पर इसका कंसंट्रेशन होता है। इसी तरह से हमारे शरीर का अपना वजन होता है। मान लीजिए किसी का 50 केजी होगा, किसी का 100 केजी होगा। इतना वजन अगर शरीर में हम ले करके चल रहे हैं तो भी हमें हैवीनेस फील नहीं होता। अगर आप 5 केजी का वजन हाथ में लेकर के 10 मिनट भी बैठ जाओ तो आप थक जाओगे, लेकिन शरीर में आप 50 केजी वजन लेकर के चल रहे हो, आपको पता ही नहीं। शरीर में कई लोग तो 100 से 200 केजी तक लेके चल रहे हैं, वो उतना ज्यादा उनको पता भी नहीं होता। 200 केजी, अगर 200 केजी अलग से उठाना पड़ जाए तो तुरंत बैठ जाए। तो इतनी वजन को लेकर के चलते हुए भी उतना थका हुआ, हैवीनेस फील न होने के पीछे का कारण क्या है? शरीर का जो उदान वायु का प्रभाव जो शरीर को एक तरह से फ्लोट कराए रखता है। वजन ज्यादा वजन होते हुए भी उस वजन के कारण से दबा हुआ, थका हुआ अनुभव होने नहीं देता। इसका मुख्य जो केंद्र है सिर है। इसी तरह से पूरे शरीर में एनर्जी सर्कुलेशन से लेकर के इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम को सही करने के लिए, तंदुरुस्त और इफेक्टिव बनाए रखने के लिए जो एनर्जी सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता हुआ काम करने का एक ऊर्जा सिस्टम है, जिसको हम व्यान वायु कहते हैं, पूरे शरीर में व्याप्त है। इस तरह से मुख्य जो को इफेक्टिव बनाने के लिए प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे प्राणायाम के माध्यम से जब हम लोग ऑक्सीजन के इनटेक को ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर सेल्स के स्तर पर एनर्जी प्रोडक्शन इफेक्टिव हो पाता है। और सेल्स के स्तर पर एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो वेस्टेज बने उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का शरीर का नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट मिल जाता है। इस तरह से शरीर टॉक्सिन फ्री होता है, जिससे ब्लड का कंपोजिशन इंप्रूव होता है। अगर ब्लड में एसिडिक एक्युमुलेशन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है, तो पूरे सिस्टम एक तरह से कमजोर पड़ जाता है। हम लोग एक्टिव एक्सहेलेशन के माध्यम से शरीर को, सबसे पहले ब्लड को, उसके बाद संपूर्ण शरीर को प्यूरिफाई करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में माइंड को एकाग्र करते हुए, मेंटल डिस्ट्रैक्शन को कम करता हुआ, शरीर के इंटरनल अवेयरनेस और ऑप्टिमाइजेशन की अवस्था को हासिल करते हैं। ये चमत्कारिक ढंग से, चाहे किसी भी स्तर में प्रॉब्लम हो, तो चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या भावनात्मक स्तर में प्रॉब्लम हो, इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्टिव प्रभाव है। और इसी तरह से नेक्स्ट है उपवास थेरापी। उपवास यह बहुत ही पावरफुल थेरापेटिक प्रैक्टिस है। हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में फास्टिंग बहुत किया जाता था, और इसको अवैज्ञानिक कहते हुए बहुत सारे सोकल एजुकेटेड लोग इसको नकारते थे। 2015 में मेरे ख्याल से एक रिसर्च हुआ, खास करके कैंसर रिसर्च, जिसमें फास्टिंग के कारण से कैंसर क्योर किया जा सकता है, ऐसा फाइंडिंग पता लगा। और इस फाइंडिंग को पता लगाने के लिए 2 साइंटिस्ट, 2 डॉक्टर्स को नोबेल प्राइज मिला। तब इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर लोगों का दोबारा फिर नजर या एक तरह से विश्वास बढ़ने लगा, अटेंशन जाने लगा। और तब से फिर अब बहुत तरह के फास्टिंग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वेस्टर्न जगत में भी। इसमें एक इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। कम से कम 10 से 12 घंटे, 15 घंटे तक फास्टिंग कर लें तो भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। जो लोग पूरा फुल डे फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, उनको भी
कम से कम रात को जल्दी खाना खा करके नेक्स्ट डे का खाना कम से कम 10-12 बजे तक ना खाएं और उसके बाद फिर लाइट खाना खा करके शुरू करें। तो इस तरह की टेक्निक को इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में प्रोपोगेट किया जाने लगा और आजकल बहुत लोग फॉलो करते हैं, इसके बहुत अच्छा प्रभाव है। लेकिन ट्रेडिशनली हम लोग बहुत तरह के निर्जला फास्टिंग से लेकर के अलग अलग फास्टिंग करते आए हैं। नवरात्रि में फास्टिंग, एकादशी में फास्टिंग और डिफरेंट ओकेजन में फास्टिंग होते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो या अन्य ओकेजन में फास्टिंग होते हैं। इस तरह के फास्टिंग शरीर के जो डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हुए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली शरीर बीमारी से अपने आप को मुक्त रख पाती है। तो इस तरह के जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, पंच तत्वों के माध्यम से इन्हीं को संतुलित करते हुए हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो फिर हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो बाहर से दिखाई देने वाला अन्नमय कोश हो या इसके अंदर एनर्जी का संचार या संतुलन बनाने वाला प्राणमय कोश हो या इसके अंदर जो मेंटल एक्टिविटीज को ऑपरेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर के रूप में एक डायमेंशन काम करता है जिसको हम लोग मनोमय कोश कहते हैं। मनोमय कोश हो या इसके अंदर बुद्धि, विवेक और चेतना को सुनिश्चित करने वाला विज्ञानमय कोश हो या अल्टीमेट फिर इन सभी सिस्टम के ऑप्टिमाइजेशन के बाद अल्टीमेट आनंद के स्टेट को हासिल करने वाला जो आनंदमय कोश या आनंदमय कोश जिसको कहते हैं, ब्लिसफुल स्टेट हम कहते हैं। इस तरह से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का संतुलन हम लोग हासिल कर पाते हैं। जब ऐसा होगा तो फिर हमारे अंदर जो वृत्तियां चलते हैं, प्रमाण, विपर्या, विकल्प, निद्रा, स्मृतया, इस तरह से महर्षि पतंजलि कहते हैं, ये वृत्ति हमारे पूरे सिस्टम को फ्लक्चुएट करा करके रख देते हैं। फिकलनेस आ जाता है जिससे हम फोकस करके कोई काम नहीं कर पाते हैं। ये सारे स्टेबल होने लगते हैं। जब ऐसा होगा तो अल्टीमेटली जो दुख के रूप में हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसको कहा गया पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, विनिवेश, पंच क्लेश, इग्नोरेंस, अस्मिता, एक्सेसिव नेगेटिव ईगो, राग, एक्सेसिव अटैचमेंट, एक्सेसिव हेट्रेड, और अविनिवेश मीन्स फियर, स्पेशली द फियर ऑफ डेथ। ये सारे मिजरी के कारण पैदा होते हैं। अगर शरीर अंदर से संतुलित हो, शरीर के अंदर सारे चीजें सही ढंग से काम कर रहे हो और इससे फिर बियॉन्ड स्टेज पर इंसान का अवेयरनेस पहुंचा हुआ हो, तो ऐसे में फिर उसको कोई बीमारी के एक तरह से कारण डेवलप नहीं हो पाते। ये पूरे एक तरह से होलिस्टिक साइकिल है, बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसे 30 मिनट के सेशन में बहुत सारी चीजें कवर भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए और आप इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करो और इसका अप्लाई करके देखो। आप अपने खुद ही डॉक्टर बन जाओगे, आपको कभी भी एक्सटर्नल मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशिंग यू गुड लक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस पूछिए, मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। इसके बाद में भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मेरे को मेल भी भेज सकते हैं। यहाँ जो लिंक होगा उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं बाद में भी जा करके आंसर करूंगा। आप लोग कई सारे जो फेसबुक में जुड़े हुए हैं उसमें आप लोग अपना जो भी क्वेश्चंस वहाँ भी लिख सकते हैं और उन सारे क्वेश्चंस का मैं बाद में भी जा करके आंसर दूंगा। और शायद कुछ क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैडम के पास कुछ क्वेश्चंस आए हों तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपने जितना भी ज्ञान बांटा और बहुत ही अच्छे से आपने हम सबको समझाया कि किस तरीके से हमारी पूरा जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है और अगर हम इन 5 तत्वों को संतुलित करके रखें तो हम किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं और हमें इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से गुरुजी आपने हमें समझाया। कुछ प्रश्न ज़रूर है यहाँ पे। एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जनरल कंसर्न है, वो जानना चाहते हैं कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज जो बच्चे कर सके ताकि उन्हें स्ट्रेस ना हो, ताकि उनकी बेटर कंसंट्रेशन हो पढ़ाई में। तो ऐसा क्या बेसिक चीजें वो घर पे फॉलो कर सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर किसी को स्ट्रेस हो और कंसंट्रेशन करने में मुश्किल हो
सबसे इफेक्टिव काम है। आप अपने हिसाब से जितना ज्यादा देर तक आप श्वास को रोक सकते हो, श्वास को रोक करके देख लो। जब श्वास रोकोगे ना थोड़ी देर, आपको पता लग जाएगा कि जो भी स्ट्रेस के कारण बाहर है ना, वो सारे के सारे उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना जीवन महत्वपूर्ण है। तो आपका एक तरह से पूरे एनर्जी का संतुलन एक्सटर्नल चीजों में जो गया हुआ था, फैला पड़ा था, जिसके कारण से कभी इधर कभी उधर दिमाग भटकने के कारण से जो प्रेशर क्रिएट हो रखा था, वो पूरी तरह से स्टॉप होकर के आपके प्राण के साथ एनर्जी जुड़ जाता है। एंड द मोमेंट योर होल एनर्जी बिकम वन विद योर इनर लाइफ एनर्जी, आप अंदर से बिल्कुल आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। वंस दैट हैपन, आपका इंटरनल सिस्टम नेचुरली ऑप्टिमाइज हो जाता है, तो कंसंट्रेशन इससे तुरंत इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। दूसरी बात, नॉर्मली जो फियर ड्रिवन थॉट होते हैं, ये अक्सर प्रेशर गिविंग होते हैं, वो आसानी से जाते नहीं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि उसके साथ फाइट नहीं करना है। अगर फाइट करने लग जाएंगे तो वो फिर और बड़े हो जाते हैं और सॉलिड हो जाते हैं, उनको खुराक मिल जाता है। आप सिंपली पॉजिटिव चीजों पर अपने माइंड को ले जाएंगे। वंस यू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव के एक्सपीरियंस अंदर एक तरह से हैप्पीनेस गिविंग होता है, शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स के प्रोडक्शन का कारण बन जाता है। ऐसे हैप्पी हार्मोन नॉर्मली 4 मुख्य हार्मोन्स होते हैं। आप सबको कॉन्शियस एफर्ट करके शरीर के अंदर ये हैप्पी हार्मोन का इनफ उपलब्धता हो, ऐसा सुनिश्चित करनी चाहिए। और ये बहुत सहज टेक्निक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट में। एक होता है एंडोर्फिन हार्मोन, हैप्पी हार्मोन है, और ये नॉर्मली तब प्रोड्यूस होता है जब आप रूटीन में कम से कम 20 मिनट आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज कर लो। आप रनिंग कर लो, और यंग जनरेशन के लोग तो बहुत तरह के चैलेंजिंग चीजें पसंद करते हैं, चाहे वो जिमिंग हो या स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग, कराटे, इवन डांस, एरोबिक्स, आजकल बहुत सारे जुम्बा है। और मैं ऑब्वियसली योगा को हमेशा ज्यादा इफेक्टिव देखता हूँ, और मैंने अनुभव भी किया है। इसके पीछे कई सारे साइंटिफिक कारण भी है। और इसमें एक चीज है कि जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद ब्रेक लेते हो ना, ब्रेक के टाइम में जो थकान उतरते हुए आपको अच्छा फील होता है, उसके कारण से हैप्पी हार्मोन में एंडोर्फिन का रिलीज होता है। लेकिन योग के अभ्यास में क्या होता है कि आप अलग अलग आसन कर रहे होते हो। एक आसन कर लिया आपने, 30 सेकंड के लिए रोका, और 30 सेकंड रोकना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद जब उस आसन को रिलीज करते हो तो हैप्पीनेस आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरे आसन करते हो, थोड़ी देर रोकते हो, उसमें रोकते समय बहुत एक्सट्रीम थकान आ चुका होता है, जब उसको रिलीज करते हो तो वहां फिर हैप्पीनेस आ जाती है। इस तरह से हैप्पी हार्मोन जो एंडोर्फिन का रिलीज है, योग में सबसे ज्यादा होता है। खैर, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज के बाद जो रेस्ट के टाइम में एंडोर्फिन रिलीज होगा। और दूसरा हार्मोन होता है डोपामाइन। डोपामाइन इज एक्चुअली हैप्पीनेस डोज है। जब आप कोई चीज अचीव करते हो तो उसके कारण से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ डोपामाइन। जब तक आप कोई चीज कंप्लीट नहीं करते हो तब तक वो रिलीज नहीं होता। तो आपको रूटीन में ये सिचुएशन क्रिएट करनी है। आप जैसे नोट बनाना शुरू करते हो तो टारगेट करिए कि नोट बना करके ही छोड़ना है। जब आपने नोट कंप्लीट कर लिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने ये काम शुरू किया था, कंप्लीट कर लिया। इमीडिएटली आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी। आप स्टडी करते हैं तो कम से कम टारगेट रखिए कि एक चैप्टर ये पूरा करना ही है, उसके बाद ही ब्रेक लेंगे। नहीं तो आप बिल्कुल वो एक तरह से गोल सेटिंग करके नहीं करते हैं, तो आपका जितना भी आप पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि ये थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मैं बुक बहुत बड़ा है, पढ़ाई तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपके अंदर वो हैप्पीनेस का ट्रिगर नहीं बनेगा। आप सेट करिए कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, या 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, जो भी पढ़ना है आप उसको कंप्लीट करिए, तभी उठिए। आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने का जो अकम्प्लिशमेंट फीलिंग होता है, दैट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ हैप्पी हार्मोन कॉल्ड एंडोर्फिन। और इसी तरह से आप अपने घर के भी कोई भी काम करते हैं, मान लो सफाई कर लिया, तो इतने बढ़िया सफाई कर लो कि देखने में बहुत अच्छा लग जाए, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आप कुकिंग करते हो तो बढ़िया तरीके से कुकिंग करो, जिससे कुकिंग करने के लिए दूसरा कोई आकर के आपको हेल्प करने की जरूरत न पड़े, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन आएगा। और ये डोपामाइन का कारण हो गया। और इसी तरह से एक होता है सेरोटोनिन।
जब आप बिना एक्सपेक्टेशन लोगों को हेल्प करते हैं, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। जैसे आप रोड में चलते हुए ओल्ड एज टाइप के लोग या हैंडीकैप या जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को हेल्प करते हो, तो कितना अच्छा लगता है, पूरा दिन बन जाता है। इसी तरह से आप ऑर्फनेज में जा करके, ओल्ड एज होम में जा करके लोगों को हेल्प करते हो, या अपने गुरु का सेवा करते हो, या पेरेंट्स की सेवा करते हो, तो इनमें एक्सपेक्टेशन नहीं होता, हम हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, तो इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। तो गुरु, पेरेंट्स, ओल्ड एज होम, ओल्ड एज लोग या डिफरेंटली एबल लोग या अंडर प्रिविलेज लोगों को आप सेवा करते हो, तो उससे जो संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो ओनली हैप्पीनेस होता है। एंड दिस विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ हैप्पी हार्मोन कॉल्ड सेरोटोनिन। इसी तरह से फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग बना करके रखनी चाहिए। फैमिली बॉन्डिंग के कारण से जो अफेक्शन फील होता है, उससे जो एक हैप्पीनेस स्टेट पैदा होता है, उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। आप अपने घर के लोगों के साथ जब बैठते हैं, तो कई बार सबके उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी होते ही। कई बार कई लोगों का आदत होता है कि सर घर के आसपास के, अपने आसपास के सभी लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स को नोट आउट करके, लिस्ट आउट करके, तैयार करके बैठे रहते हैं, और उससे और ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता है हमारे अंदर। उससे पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप नहीं होते। हम उन नेगेटिव क्वालिटी को लिस्ट आउट करके अपने आप को हेल्प नहीं कर रहे होते हैं। एंड ट्राई listing out positive qualities of the people around, and it will help you imbibe the positive qualities, create a positive environment. इससे आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन प्रोडक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। इस तरह से 5 हैप्पी हार्मोन के स्टेट में अपने आप को रखिए, और मैंने कहा एक्सरसाइज करिए और श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास करिए। स्ट्रेस ड्रिवन प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, और फिर आप पूरी तरह से आनंद के साथ जो भी काम करते हैं सक्सेसफुली कर पाएंगे। इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। Beautifully answered, Guruji. I mean, nobody could answer the question so beautifully as you did. I'm sure our students will benefit from this. So, Guruji has given us fewer tips, which also includes that we have to create our own happiness. And one way is definitely to give unconditional love, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, वहाँ जरूर happiness hormones release होते हैं। जी गुरुजी। तो गुरुजी यस, ने यस तो गुरुजी ने अपने टिप्स में बहुत सारे बाकी क्वेश्चंस भी आंसर कर दिए हैं कि कैसे हम अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं। और बाकी गुरुजी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो बच्चों ने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं कमेंट्स में, तो हम उनको ज़रूर जवाब देंगे बाद में। और अभी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमें सेशन को संपूर्ण करना होगा। गुरुजी अगर आप कुछ फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहें हमारे ऑडियंस को। मैं ये कहूंगा कि आप अभी तो जैसे कोविड के कारण से, पेंडेमिक के कारण से बहुत पैनिक सिचुएशन है। आप रूटीन में एक्सरसाइज जरूर करें, हेल्दी खान पान रखें, और हैप्पी स्टेट में, पॉजिटिव स्टेट में रहें। इम्यून सिस्टम इससे इम्प्रूव होता है, और जब इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बाई चांस ये कोरोना वायरस लग भी जाए तो भी बॉडी अपने आप ही इसको ओवरकम कर पाएगी। और आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उस काम में बिना डरे हुए लगे रहें, और निश्चित रूप में इस समय इस डिफिकल्ट टाइम से देश दुनिया को आगे बढ़ना है, और हार्डशिप सबके लाइफ में आने वाले हैं, और इन हार्ड सिचुएशंस को एक तरह से अवसर के रूप में यूज करने के लिए जी हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। और आप लोग पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, और हम सब मिलकर के समाज, देश, दुनिया को इस महामारी से आगे ले जाएंगे, और एक हैप्पी और एक प्रॉस्पेरियस देश को हम निर्माण करेंगे। इसमें आप सब योगदान दें, यही शुभकामना है, यही सुझाव संदेश है। धन्यवाद। जी। So let's all create a happy world. Pranam Guruji.